Good morning to all the students of class 10. Welcome to all of you in mathematics class. Today our new chapter is started. Okay, and our new chapter is linear equation in one variable. This is our new chapter. Okay, and I would like to discuss one by one some important terms regarding this chapter. Okay, please carefully listen here. And the first is given equation. Okay, a statement that two quantities are equal is called an equation. Here is an equation. Here is also a statement is given. In his two quantities are equal. Therefore, 2x plus 5 is the first quantity and another quantity, second quantity is 11. And between them there is an equal sign. And so the two statement according to the definition, the statement that two quantities are equal. Here are the two statement 2x plus 5 and another statement is 11 and they are unequal. Okay, so it is an equation. Now variable, some important terms. It is variable. A variable is a symbol that represent an unknown number. Variable is also it is unknown number. There is no fixed value of variable, so it is called an unknown number. It is represented by some alphabets of English. Okay, and third one is linear equation. An equation involving only linear polynomial is called a linear equation. Okay, here is a linear polynomial means here is given a polynomial of degree 1 or highest power of the variable is in 1. Okay, here is the 2x plus 5 equal to 6 is an example. Here this is a polynomial and its highest power of variable is, that is x, is equal to 1. Here is power of x is 1, so it is called linear polynomial. Okay, and now linear equation in one variable. This is our main chapter topic. Okay, a linear equation containing one variable is called linear equation in one variable. Here is an example, two example. Okay, x minus 5 equal to 7 minus 2x. This is the example of linear equation in one variable because x is variable on the both sides. Here is x and also here is x. In the second question also x is variable, no other variable. So x is variable, so it is called linear equation in one variable, that is the variable is x. Okay, is it clear? Now some important rules for solving the linear equation. Okay, now some important rules for solving the linear equation. One by one we can discuss here. First is given, we can add the same number on both sides of the equation. Okay, in any equation we can use same number as addition on the both sides of the equation. Okay, here is that is x minus 5 equal to 7 minus 2x. We can use any number on the both sides but same number on the both sides. Okay, and second one is we can subtract the same number from both sides of the equation. We also subtract the same number on the both sides in a linear equation while we are solving them. Next, we can multiply both sides of the equation by the same non-zero number. Non-zero number, that means there is no zero, only counting number 1 2 3 4 5 and so on. Okay, and this can be used by multiplication. Any number we can multiply by any number on the both sides of the linear equation. Okay, next one is we can divide both sides of the equation by the same non-zero number. Okay, we can also divide this by the same number on the both sides of the linear equation, but number will be non-zero. Okay, and now next one, last one is transposing. Transposing is also called a method. Okay, any term of an equation may be taken to the other side with a change in its sign. This process is called transposition. Okay, this process is called transposition. Here some examples here is given. I would like to explain you with an example. Here is the question 2x plus 5 equal to 10. This question will be solved by the method of transposing. There are two methods for solving. First method is by the transposing and second method is by the using rules. Okay, I would like to tell you, I like to explain you both process. Okay, first is 2x plus 5 equal to 10. Here
this by transposing 5, okay, 5 transposing, that it will go to the on other side and the sign will be changed, this positive sign in the left side, and this while it go to the right side, and so it sign will be changed, sign is also minus, then 10 minus 5 equal to 5, that is x equal to 5 by 2. This is the method of transposing. And another method is by using rules, okay, 1 2 3 4 rules. Here is given 2x plus 5 equal to 10. We are using the rules, that is the second rule. Second rule is given, we can subtract the same number from both sides of the equation. Here we use minus 5 on the both sides, okay, minus 5, that means 5 will be subtracted on the both sides. Minus 5, here is also minus 5 on the left side as well as right sides. 2x plus this 5 plus and this 5 minus will be cancelled, and now 2x equal to 5. Now again we can use in question number rule number 4. We can divide both sides of the equation by the same non-zero number. Here is 2, we use both sides as a divider, 2 on the both sides, it is also non-zero number, and so 2 and 2 will be cancelled, then x is equal to 5 by 2. This is the answer, okay. अब मैं एक बार हिंदी में आपको समझा दूं, ठीक से ध्यान से देखेंगे आप सारे लोग। ये हमारा क्लास 8 का ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा चैप्टर है, ये हमने आज स्टार्ट किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा यह चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस पर ध्यान देंगे आप सारे लोग। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फिर से आप याद करें, सेकंड चैप्टर अपने किताब में है, ये अपने एनसीईआरटी बुक में ये सेकंड चैप्टर है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, उसे ध्यान से देखेंगे आप सारे लोग। पहला इक्वेशन, ए स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, कह रहा है कि दो क्वांटिटी, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो क्वांटिटीज इक्वल हो। अब देखिए यहाँ 2x प्लस 5 एक क्वांटिटी है, दूसरा क्वांटिटी 11, दोनों के बीच में इक्वल है, इसलिए ये हमारा इक्वेशन को डिफाइन करता है। दूसरा है वेरिएबल, वेरिएबल ये सिंबल एक ऐसा संकेत है जिसके जो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है अननोन नंबर, जिस संख्या की निश्चित फिक्स्ड नंबर नहीं होता, इसे दर्शा, ये खास करके हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं इसमें, मैथमेटिक्स में अधिकतर अलजेब्रा में यूज होता है ये। लीनियर इक्वेशन अब जान लें क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसमें लीनियर पॉलिनोमियल कह रहा है इसमें कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि लीनियर पॉलिनोमियल हो। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल, उसका पावर 1 होना चाहिए, इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप देखिए यहाँ 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 है, इसमें x है हमारा वेरिएबल, इसका पावर हमारा क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो ये 1 लेंगे, हम लोग 1 ही मानते हैं इसको, इसलिए इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग, और सारा सीनियर क्लास में पढ़ेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, क्लास 9 10 में पढ़ेंगे हम लोग सीनियर क्लास में। अभी हम लोग किस क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही पढ़ना है, आगे देखेंगे। अब है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसमें जिसको डिफाइन किया गया ए लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग 1 वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल एक हो। अब देखिए क्वेश्चन नहीं हमारा, एंड दो हमने एग्जांपल दिया है, x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 2x। इसमें देखिए ये x है हमारा जो ये वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। वेरिएबल कहने मतलब कि 1 भी पावर है, और फिर ये वेरिएबल x के अलावे कुछ दूसरा नहीं है, वाई जेड ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम कह सकते हैं एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल एक ही यूज होता है, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। इन दोनों में देखिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 10, इसमें भी x यूज हुआ है। आगे है कुछ रूल्स है सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, जब वैल्यू निकालते हैं x का, y का, जो भी है आपका वेरिएबल टर्म का, तो ये यूज करते हैं। पहला है वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, हम लोग किसी संख्या को हम लोग दोनों साइड जोड़ सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफ हम दूसरा कुछ दूसरी तरफ दूसरा कर दिए, किसी सेम नंबर से ही दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, दोनों नंबर किसी सेम नंबर से दोनों साइड हम लोग घटा भी सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो तरफ होते हैं, एक एक्सप्रेशन होते हैं, तो एक तरफ हम घटाते हैं, दोनों तरफ घटाना ही होगा, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, काउंटिंग नंबर 1 2 3 ऐसा होना चाहिए।
तो हम कैसे इसमें कहा गया है कि मल्टीप्लाई भी कर सकते, दोनों इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग लेफ्ट साइड में राइट दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और ये चौथा है हमारा कैन डिवाइड बोथ नंबर, किसी सेम नंबर से हम दोनों साइड डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, अब ये है पांचवा हमारा ट्रांसपोजिंग, जान लीजिए। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड विथ ए चेंज ऑफ इन इट्स साइन, उसका साइन कह रहा है क्या, कोई एक्सप्रेशन में यदि किसी नंबर को दूसरे तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड हो जाता है या राइट से लेफ्ट आता है, उसका साइन भी चेंज होगा। जैसे एक तरफ लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड नेगेटिव चला जाएगा, यदि नेगेटिव है तो साइड जब बदलेगा तो उसका साइन भी बदल जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी बात को कहता है ट्रांसपोजिंग। इस मेथड से, इसे एक प्रकार का मेथड भी है, ये तरीका भी बनाने का, जिसे हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन प्रोसेस। तो अब लीनियर इक्वेशन को एक मैंने सॉल्व किया है, ध्यान से देखेंगे आप। सॉल्व करने में दो तरीके इसमें हैं, एक है पहला ट्रांसपोजिंग मेथड से, जिसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं, इसके सहारे बनाया हूँ मैं। फिर बाद में फिर दूसरा मेथड, ये रूल हमने यूज़ किया, अप्लाई, जो नियम बनाने का 1 2 3 4 उसको यूज़ किया हमने। दोनों मेथड देख लीजिए। पहला मेथड हमारा 2x + 5 = 10 लीनियर इक्वेशन है, दोनों तरफ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 2x + 5 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 10 हमारा है। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं इसमें बाई ट्रांसपोजिंग मेथड। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड 5 को सब्ट्रैक्ट किया। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में है हमारा, ये है 2a, यहाँ हमने क्या किया, ये पहले तो ये ट्रांसपोजिंग मेथड हमने यूज़ किया है, तो इसलिए इसका उसमें माइनस प्लस नहीं करेंगे। इसमें एक्चुअली करेंगे क्या, ये ट्रांसपोज साइन, ये डिजिट चेंज हुआ है, साइड इसका चेंज होगा। ओके, तो ये 2x है, ये 5 लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहा है, 10 की तरफ जा रहा है। देखिए इधर लेफ्ट में प्लस है, इधर राइट साइड गया तो वो माइनस हो गया, तो 10 - 5 = 5 आया। अब ये x = सीधे डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे हम लोग, तो ये 5 जिसका वैल्यू निकालते हैं उसके साथ का जो नंबर अटैच रहता है, डिजिट रहता है, वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये देखिए x = 5/2, ये हो गया हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। अब ये देखिए दूसरा जो हमने यूज़ किया रूल, उसके सहारे इसमें देखिए क्या क्या यूज हुआ हम। तो ये क्वेश्चन वही है, 2x + 5 = 10। हमने क्या किया, दोनों साइड हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, बाय द रूल्स, ये जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो रूल्स हमने 4 रूल तैयार किया, उसी के सारे हमने यूज़ किया। तो देखिए पहला यूज़, सेकंड रूल हमने यूज़ किया, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर, किसी सेम नंबर से हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए 2x + 5 इधर है 10, तो ये 5 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ घटाया, इधर भी और इधर भी। तो देखिए -5 इधर भी लिखा, -5 इधर भी लिखा हमने। देखिए +5 -5 कट गया, ठीक है, ये बच गया इधर 2x = इधर 10 में से 5 गया तो 5 बचा। फिर हमने यूज़ किया है, देखिए यहाँ से एरो से ले गए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को, 2x/2 और 5, ये 2 से डिवाइड किया हमने, ये 4 नंबर रूल यूज़ किया हमने। वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर हमारा 2 है, इससे हमने डिवाइड किया दोनों तरफ, 5 को भी डिवाइड किया 2 से, इधर 2x को भी 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। x = क्या बचा, 5/2, ये आंसर आ गया। ये मैं समझता हूँ ठीक से इसको आप देखेंगे एक बार, बड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। और फिर अगले कुछ न्यूमेरिकल लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। अब ध्यान से अच्छी तरह देखें, आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट करके मुझे दिखाएंगे भी। ठीक है, ठीक है, आप सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, फिर से एक बार आपको हैव ए नाइस डे और स्टे होम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।